जो काम किया मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए खड़े खड़े ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर पुत्र बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा में यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की हुकूमत ने दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और मेरवा में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुझे बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, यहाँ से वो जिंदों मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जुटने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखिए। आप लोग जानते हैं कि हर संडे को हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा था, लेकिन कुछ दिनों से वो सिलसिला डिस्टर्ब है। मैसेज वहाँ से मैं नहीं दे रहा। आप सारे उसकी वजह जानते हैं। थोड़ी देर के लिए जरा तवज्जो चाहिए होते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं जड़ा वालों में जो कुछ हुआ दुख की बात है, और ये खास लोग हैं जो ये काम करते हैं। उसके बाद 2 इलाके और उस सब में आते आते बच गए। सारी सारी रात हम जागते हैं, दुआ करते हैं, जब तक वहां से कोई अच्छी खबर नहीं मिल जाती। सारी सारी रात हम बैठे होते, दुआ कर रहे होते हैं। आज से 3 दिन पहले रावलपिंडी में एक वाकया हुआ। पता है आप लोग, मैंने बहुत सारी सेंड की, बहुत सारी वीडियो मैंने सेंड की। वहां पर भी एक अफवाह फैलाई गई। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब तक आप किसी की तस्दीक ना कर लें मत आगे बढ़ाएं। लेकिन वो अफवाह शाम तक फैली रही। वहां पे जो पहली मैंने वीडियो सेंड की थी, वहां पे आप देख सकते कि पुलिस की गाड़ी थी। वो पुलिस की गाड़ी वालों ने आके कहा कि जी यहाँ पे ये मसला हो गया है तो खतरा है। तो लोग रात को ही अपने बच्चों को लेके उस इलाके से निकल गए और पूरा इलाका खाली था। मैंने सारी वीडियो भेजी थी, सारे एक एक घर को ताले लगाए थे। जिसने मुझे वीडियो बना के भेजी उसने एक एक ताले को दिखाया, ये भी घर बंद है, सारे घर। मैंने जब
پنڈی والوں سے رابطہ کیا تو ایک بیٹی نے فون اٹھایا تو کہتی انکل ہم گھر میں نہیں ہیں، ہم آ گئے ہیں وہاں سے، لیکن انہوں نے مجھے اپنے ہسبینڈ کا نمبر دیا، انہوں نے کہا وہ گھر ہے آپ اس سے پتہ کریں۔ جب میں نے اسے کہا تو اس نے کہا کہ حالات تو خراب ہیں لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہونا کیا ہے، ہم لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو سارا دن وہاں پہ پولیس رہی، پھر مقامی جو غیر مسیحی لوگ ہیں، مسلم لوگ ہیں، مقامی جو تھے وہ نکلے پائے، وہاں کے جو کرتا دھرتا تھے وہ باہر نکلے، اور انہوں نے آ کے پھر کہا کہ آپ لوگ واپس آئیں، اگر کوئی آپ پہ اٹیک کرے گا تو ہم سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں جو اس وقت ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ خدا کی مرضی ہے، خدا نے ان کو استعمال کیا اور وہ کھڑے ہو گئے، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہے۔ وہ کھڑے ہوئے اور پھر وہاں کے حالات ٹھیک ہوئے، انہوں نے جب یقین دہانی کروائی تو پھر لوگ اپنے گھروں میں واپس آئے۔ ابھی وہ واپس آ رہے تھے، دوسرے دن ہی صبح سویرے مجھے ایک بیٹے کا فون آیا، لیکن پھر کوئی 10:30 بجے قصور سے اس نے مجھے کہا انکل ہمارے علاقے میں ایک واقعہ ہو گیا ہے اور یہاں پہ وہی سین چلنے لگا ہے جو جڑاوالا میں ہوا ہے، یہاں ہمیں دھمکی دے دی گئی ہے اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے چرچوں کو آگ لگانی ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے وہاں کی کوئی ویڈیو بھیجیں، پھر ہم سوشل میڈیا پہ بھیجیں گے۔ آپ کو پتا ہے میرے سب بہت سارے گروپ ہیں، خدا کا شکر کہ آج ہمارا چینل جو ہے یہ جس دن سے جڑاوالا کا واقعہ ہوا اور ہم اپڈیٹ دے رہے ہیں، اس وقت 9 ملک جو ہیں ہمارے چینل کو واچ کر رہے ہیں۔ 9 ملک، میں صبح دیکھ رہا تھا 9 ملک ابھی بھی جو ہماری عبادت آن لائن جاری، یہ 9 ملک جو ہیں وہاں پہ مختلف لوگ جو ہیں ہماری عبادت کو اٹینڈ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اچھا میں ابھی ویڈیو بھیجتا ہوں، میں کہا ویڈیو بنا کے بھیجیں، کیونکہ میں کچھ دیر پہلے سال پہلے میں اسی چرچ میں میسیج دے کے آیا تھا، اسی چرچ میں نے میسیج دیا تھا اور میں وہ گلیاں سارا جانتا تھا کہ یہ علاقہ کیسا ہے۔ جب انہوں نے مجھے پھر ویڈیو بنا کے بھیجی، پولیس کھڑی تھی، گاڑی کھڑی تھی، پھر انہوں نے مجھے 3 ویڈیو بھیجی اور پھر ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا کہ قصور میں بھی یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اور ویڈیو جب وائرل کی جاتی ہے اس کا ایک فائدہ پہنچتا ہے، اسی وقت پولیس آتی ہے، جہاں پہ جس چرچ کو کہا جاتا کہ یہ ہم نے جلانا ہے، وہاں کا ڈی سی او سلام پیش کرتے ہیں اس ڈی سی او کو بھی جس نے دلیری دکھائی تھی، وہ چرچ کے اندر جا کے بیٹھ گیا، اس نے کہا اگر آپ نے آگ لگانی تو میں اندر بیٹھا ہوں، آپ آگ لگا دیں۔ ڈی سی او اندر بیٹھ گیا، بہت سارے پاسٹر بھی وہاں پہ بیٹھے اور پھر تھوڑا معاملہ سیٹل ہوا۔ اب واقعہ کیا وہاں پہ ہوا، ایک عورت نے بے بنیاد الزام لگایا اور جب پولیس آ گئی خود لگا کے غائب ہوگی، جب آگ لگا دی اور پھر غائب ہو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد جب انتظامیہ پہنچی، ڈی سی او پہنچا، ایس ایچ او پہنچا، تمام اعلیٰ حکومت کو جو پولیس والے وہ سارے پہنچ گئے جب، تو پھر جب اس کی ویڈیو میرے پاس وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بھیجی تھی، پھر وہ مکر گئی، اس نے کہا جی میں نے تو بات ہی نہیں کی۔ اس دونوں میاں بیوی نے یہ بات پھیلائی، پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا گیا، پوری رات وہ سوئے نہیں، بچے جاگتے رہے، لوگ جاگتے رہے، لیکن ان کی ایک بات سے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ پھر جب سب نے پوچھا تو پھر ان لوگوں کے سامنے کہتی جی میں نے تو بات ہی نہیں کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ انہوں نے کہا کہ تیرے ہسبینڈ نے بھی تو یہ بات کی، تو کہتا جی میں اس کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں، اپنے ہسبینڈ کری کون اللہ وسائنا، حالانکہ اس کا ہسبینڈ ہے، دونوں میاں بیوی نے مل کے کیا، لیکن اس وقت کہتی جی کون ہے اللہ وسایا، انہوں نے آؤ میرے سامنے، حالانکہ اس کا ہسبینڈ ہے۔ خدا ایسے ذہنوں کو چینج کرتا ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کی دعاؤں کا اس طریقے سے جواب دینا شروع ہو گیا ہے کہ خدا اب بڑے بڑے کام کرنا شروع ہو چکا ہے۔ پھر رات تقریباً 1:30 بجے تک
मैं उनके साथ रास्ते में, और मैं यहाँ पे बैठा था, मैंने साहिवाल में फोन किया कुछ दोस्तों को, तो मैंने कहा अगर अभी 2 बजे तक हम देखेंगे, अगर 2 बजे तक ये मामला सेटल होता है, नहीं तो फिर हम कसूर के लिए निकलेंगे। आप उधर से निकले और मैं यहाँ से निकलूंगा, और फिर हम कसूर में जाके उस इलाका का विजिट भी करेंगे, और वहाँ जो आला जो अहदेदारान हैं उनको मिलेंगे और उनको कहेंगे कि सिक्योरिटी दे, क्योंकि सिक्योरिटी का वहाँ पे मसला था, क्योंकि बाबा बुल्ला शाह जो है उसका मेला हो रहा वहाँ पे, तो इसलिए उनका ये सिक्योरिटी नहीं हम दे सकते, हम वहाँ पे सिक्योरिटी दें या आपको दें। लेकिन अब कल भी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई साहब अब खुदा का शुक्र हालात ठीक है और कंट्रोल में, और पुलिस जो है वो आ जा रही है और ज्यादा नफरी वहां पे होगी, और ये सारा कुछ खुदा करने वाला है। कल हम कहीं बैठे थे, काफी पास्टर हम जमा थे, तकरीबन कोई 15-20 पास्टर होंगे, हम सारे बैठे थे। तो एक पास्टर ने बड़ी खूबसूरत बात की, क्योंकि मैंने उनको एक वाक्य, मैं कहा भाई साहब जिस दिन मैं जड़ा वाले से आया हूँ, तो जब मैं जड़ा वाले से वापस आया हूँ, यार ये ट्रेन उठाओ यहाँ से, जब मैं जड़ा वाले से वापस आया तो एक बहन बेटी थी यहाँ पे हदिया देने आई कि भाई साहब मैं लेट हो गई हूँ, अब दोबारा जब आप जाएंगे तो हमारा हदिया जरूर उसमें डालें, और जरूर हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ वहां पे लेके जाएं। तो उसने एक बात कही कि भाई साहब जब लोगों ने क्रॉस तोड़ी, खुदा ने उनके हाथ क्यों नहीं तोड़े, खुदा ने क्यों नहीं उनको कुछ कहा। तो मैं परेशान था, मैं क्या बेटा खुदा चेंज हो गया शायद, अब खुदा फजल के दौर में आ गए ना, फजल के दौर में थोड़ा चेंज हो गया। पहले खुदा गिर खुदा था, अब भी गिर खुदा है, अब भी वो गैरत रखता है। और रात को जब हम बात कर रहे थे तो यही बात हो रही थी, पास्टर साहब मुझे कह रहे भाई साहब मैं बैठ के दुआ कर, मैं खुदा ना गिला कर रहा था। मैं क्या गिला कर रहे थे, कह रहा मैं खुदा कह रहा खुदावंद हैकल च तू गया, एक ही हैकल सी छोटी जी, तो तू जाके उत्थे सारियां दी दुकानां ढातियां, तू क्या मेरे बाप का घर तो ही डाकुओं की खो बनाता है। ते खुदावंद हुण कितने घर तेरे साड़ दिते, कितनी ज्यादती हमारे साथ हो रही, तो खुदावंद अब नहीं तेरी गैरत जाग रही। ये हम अपनी क्या सराइयां लगाते हैं, खुदा से गिला कर सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे वाकयात होते हैं तो हमारे दिल खुश नहीं है, हम खुश नहीं है, ये ज़हन में रखें। कल किसी बेटी का मुझे फोन आया, तो कहती भाई साहब आप परेशान हैं, आप फारग हैं। मैं कहा ना मैं फारग हूँ और मैं परेशान भी हूँ, दोनों काम ही है, मेरे साथ इस वक्त बात ना करो, आप फोन बंद कर दो, क्योंकि अभी मैं इस मूड में नहीं हूं कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं, क्योंकि हम दिली तौर पे टूटे हुए हैं। कल मुझे एक फोन आया जड़ा वाले से, मैंने एक वीडियो भेजी आपको, ये पूरी एक प्लानिंग थी जो जड़ा वाले में हुआ, ये प्लानिंग हुई है, ऐसे ही ये सारा कुछ नहीं हुआ। वहां पे आप जाएं तो 20 किलोमीटर का एरिया है जिसमें ये सारा काम हुआ है, और कुछ चर्च ऐसे हैं जहां पे क्रेनें लेके आए हैं, क्रेन लाके तोड़ा जा रहा चर्च को। एक चर्च वो चर्च है जो 100 साल से पुराना चर्च था, जब जड़ा वाला आबाद हुआ वो चर्च उस वक्त बना, और उस चर्च को भी उन्होंने तोड़ दिया। जब हम वहां पे गए, हमने उस कब्रिस्तान का भी विजिट किया। कब्रिस्तान हम इतनी इज्जत देते हैं कि हम लपाइये करते फिरते हैं, ये करते वो करते, लेकिन वहां पे कब्रों की जो बेहुरमती की गई है आप सोच नहीं सकते। मैंने वो भी वीडियो भेजी थी आप लोगों को, कब्रों को मार रहे, डंडे मार रहे, क्रॉसे तोड़ रहे, तख्तियां तोड़ रहे, एंड कब्रिस्तान की दीवार ही गिरा दी। और हम बात कर रहे थे कि ये जुल्म की इंतहा, इससे आगे क्या आप जा सकते हैं, इससे आगे कुछ हो सकता है कि आप मुर्दों को मारने तक चले गए, मुर्दों को मारने तक चले गए। कल जब मुझे फोन आया
जब हम उस दिन विजिट करते हैं, आज मुझे कल मुझे फोन डेली हमारी बातचीत होती है जड़ावाल में, कभी किसी से जो पास्टर साहबान जाते हैं उनसे हम रास्ते में होते हैं, क्योंकि हमें खुदा का शुक्र के सब जानते हैं। तो पास्टर मुझे बता रहे थे कि भाई साहब 2 इलाके ऐसे हैं जहां अभी आपने विजिट करना है, वहां खुराक की बहुत कमी है। वो लोग कहते हैं जी सिर्फ हमें खाने के लिए दे, हमें कुछ ना दे, हमें कपड़े ना दे, हमें जूते ना दे। क्योंकि पिछले दिनों जब जड़ावाले के बारे में हमने विजिट किया तो हमने सारा कुछ पता किया, तो उन्होंने कहा जी इस वक्त वहां पे जो जरूरत है बच्चों के जूतों की, उनकी बुक्स की, उनकी कॉपियां, पेंसिलें, बैग और यूनिफॉर्म, क्योंकि ये सारा कुछ वहां पे खत्म कर दिया गया है, क्योंकि उन लोगों के घरों को पहले लूटा गया है। ये लूट मार का काम है सारा। पहले उनके घरों में से सारा कुछ सामान निकाला गया है, पैसे निकाले गए, जेवर निकाले गए, क्योंकि उनको तो आनन फानन वहां से निकलना पड़ा। आपने तस्वीरें देखी ना, वो बच्चियां जो खेतों में सो रही थी, हमने जाके उनको ढूंढा और हम उस फैमिली को मिल के आए। उनका एक बच्चा अभी तक इतने सदमे में है कि वो जब उठता है तो वो रोता है और एकदम चीखे मारता है तो वो मारने के लिए आ गए, चीखे मारना शुरू कर देता है। और लोग इतने खौफ में वहां पे बैठे हुए। और कल उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब वो खाने के लिए बैठे हैं, वो कहते कि जब आप काम पे गए, अब काफी दिन हो गया, हमने कहा चले काम काज करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते, तो कहते जब हम फैक्ट्रियों में गए तो फैक्ट्रियों के लोगों ने हमें फैक्ट्रियों में काम नहीं दिया। उन्होंने कहा जी आपका जो मसला है डेंजरस है, आपको हम काम देंगे तो हमारी फैक्ट्री पे कोई ना हमला कर दे। तो इसलिए वो लोग ढूंढते हैं, उनको इस वक्त जरूरत है आप लोगों की हेल्प की। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहता हूं अब जो भी जाए उन चक्कों का विजिट करें, वहां पे खाना लेके जाएं, वहां पे उनको दें, क्योंकि वहां पे अशद जरूरत है। क्योंकि वो लोग बेचारे घरों में बैठे हैं, वो कहते हैं जी हमें काम देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्या इससे बड़ी कोई ज्यादती हो सकती है? कहने को हम क्या हैं? आजाद हैं, हम आजाद हैं। जो हमने वीडियो लगाई है, आपने उसमें देखा होगा, उसी चर्च में जिसमें हम खड़े हैं पाकिस्तान का झंडा लगा था, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, और उन्होंने भी 14 अगस्त चर्च में मनाया था। और 16 अगस्त को एक बहुत बड़ा तोहफा हमें पाकिस्तान की तरफ से मिला है। आइए थोड़ी देर के लिए जरा खुदा के कलाम को देखते हैं कि जब खुदा के लोगों पे मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो कैसे निकलते हैं, उसका तरीकाकार क्या है। अगर आज हम भी वो तरीका अपनाएंगे तो जरूर हम इन परेशानियों से निकल सकते हैं। निकालें असरत की किताब और बाप उसकी 21 से 23 तक पढ़ेंगे। 511 नंबर पेज है, 511 नंबर पेज, पुराना ऐतनामा, असरत की किताब और बाप 21 से 23 तक पढ़ेंगे। तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मनादी गिराई। मैंने क्या की? जब एक बहुत बड़े अम्बुआ ने, बहुत सारे लोगों ने उन पर अटैक करने की कोशिश की, उनके साथ जंग करने की कोशिश की, तो कहता कि मैंने क्या की? रोजा की मनादी की। हम भी बार बार आप लोगों को कहते हैं आप रोजा नहीं रख सकते, ना रखें, लेकिन कम से कम उनके लिए दुआ तो करें, दुआ तो करें उनके लिए। मैं बार बार रिक्वेस्टें भेज रहा हूं व्हाट्सएप पे कि इन दिनों में आप लोग बराए मेहरबान थोड़े आगे हो जाए, थोड़े आगे हो जाए, पीछे वाले जो है ना वो आगे हो जाए थोड़े थोड़े। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप लोग इन दिनों में सेलिब्रेट करें सारा कुछ, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन जो स्टेटस है वो चेंज करें। गाना वाले स्टेटस ना लगाएं, बर्थडे के स्टेटस ना लगाएं। इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद तो हमारी कौम पर रहम कर, मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर, क्योंकि जो कुछ हो रहा है
कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर खुदा को वाकई गुस्सा आ गया तो रोना ही ना वापस आ जाए। खुदा कुछ भी कर सकता है, खुदा कुछ भी कर सकता है, कोरोना भी वापस आ सकता है और भी कोई बीमारी आ सकती है, लेकिन हम इतने मगन हैं कि फिर भी ना तो हम दुआ करते और ना हम चर्चिस का रुख करते हैं कि हम चर्च में आके दुआ कर सकें। यहाँ पे लिखा है कि फिर मैंने रोजे की मनादी करवाई जी, ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उसे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी रात तलब करने को फरोख्त बने। क्या करें, क्या करें? फरोख्त बने। हम फरोख्त बने, उम्मीद रखते हैं खुदा कुछ कर दे, खुद नहीं करना कुछ भी, खुद हम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं, खुदा ते आस रख के बैठे हैं। आस रखे हैं उस पे, क्योंकि हम उसी पे आस रख सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने आप को भी तो पस्त करें, अपनी जिंदगी को भी तो चेंज करें, अपने अंदर उनका दर्द तो देखें। आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊं कि दर्द क्या होता है। 2 दिन नहीं हम सोए, जब वहां से वापस आए हैं वही सीन, वही लोग नजर आते थे रात को भी कि हम यहाँ पे सोए हुए हैं, हमने पंखे लगाए हुए हैं और वो गर्मी में बैठे हुए हैं, गलियों में बच्चे छोटे छोटे गलियों में बैठे, कोई पंखे का इंतजाम नहीं, कोई लाइट का इंतजाम नहीं है, क्योंकि अभी तक सारी लाइट जो है कटी हुई है, जल गई सारा कुछ, इसलिए वो लाइट बहाल ही नहीं कर रहे कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। हम यहाँ पे बड़े आराम से बैठे, लिखा है कि बच्चों के लिए, सबके लिए क्या करें? हाँ जी पढ़े। और अपने माल के लिए सीधी रात तलब करने को फरोख्त बने, क्योंकि मैंने शर्म के बाइस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी, ताकि वह राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई करने के लिए इन सब के साथ है। हम भी आज यही कहते हैं कि हमारा खुदा भलाई करने के लिए हम सबके साथ है। ये हमारा ईमान है कि वो भलाई करना जानता है और वो भलाई करता है। आपने देख लिया कि जब 2 वाकयात और हुए, बड़े बड़े वाकयात हुए, लेकिन खुदा ने भलाई दिखा दी, खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया और उन लोगों को चेंज किया जो रात को कहते कि हम सारा कुछ कर देंगे और दूसरे दिन वही कहते कि नहीं जी कुछ नहीं करते। खुदा भलाई करना जानता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम भी अपने आप को आजिज करें, पस्त करें, दर्द रखें। लेकिन अगर हम अपने कामों में लगे रहेंगे, अपनी रंग रलियों में, तो फिर हमारे अंदर जड़ा वाले लोगों का कोई दर्द नहीं है, ना कसूर वालों के, ना रावलपिंडी वालों के। जितने वाकयात हो रहे हैं आपके सामने हैं, और ये तो भी शुरुआत है, ये तो भी शुरुआत है। आगे देखें होता क्या है। दूसरा तवारीख 20 बाब उसकी 3 और 4 है। 482 नंबर पेज। थोड़े हवाले ज्यादा हैं, मैं चाहता हूं थोड़े से हवाले देखें जरा। दूसरा तवारीख 20 बाब उसकी 3 और 4 है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। गलत है। दूसरा तवारीख 2 बाब 20 बाब की 3 और 4 है। और जिसका डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ, वो डर कर खुदावंद का डरे नहीं है। आपके दिलों में डर नहीं है। इस वक्त हमें डर रखना चाहिए, लेकिन किसका? खुदा का डर रखें जो सारा कुछ करता है। खुदा के से डरेंगे तो खुदा हमारी मदद भी करेगा। पढ़े जी। और सारे यहूदा में रोजा की मनाती कराई। सारे यहूदा में क्या की? रोजा की मनाती। जहां पे मुश्किल देखते हैं, जहां पे परेशानी आती है, उसी वक्त
एक ही मनादी होती है कि रोजा रखें, दुआ करें। और जब आप रोजा और दुआ करते हैं तो फिर खुदा बड़े बड़े मौजूद करता है। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं यीशु मसीह के पास से एक लड़के को लेके आए जिसके अंदर बदरू थी, मिर्गी की बदरू थी। उसके बाप ने शिकायत दी यीशु मसीह से कि तेरे शिगिर्दों के पास मैं इनको लेके आया हूं अपने बेटे को, लेकिन ये नहीं निकाल सके। तो यीशु मसीह ने जब निकाल दी तो उसके शिगिर्दों ने पूछा कि हम उस्ताद क्यों नहीं निकाल सकते थे? उसने क्या कहा? क्या कहा था? ये किस्म दुआ से, खुदा दुआ से बहुत कुछ चेंज कर सकता है, लेकिन आप ईमान से दुआ करना शुरू करें। अगर आप सारे मिलकर दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है कि जड़ा वाले के लोग जो हैं वो बहाल होंगे और खुदा करेगा कि हमें इंसाफ भी मिलेगा। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं वो ये है कि वहां के लोगों को खाना पीना मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन हमें इंसाफ भी चाहिए कि उन लोगों को अदालत में लेके आए, उनको सजा दें जितनों ने इतनी बड़ी बेहुरमती की है, इतना बड़ा काम किया है। इसलिए आज जरूरत है कि हम दुआ करें और अगर रोजा रख सकते हैं तो रोजा जरूर रखें उनके लिए, ताकि खुदा हमारे रोजों का भी जवाब दे। पढ़ते जाएं। रोजा जो है अगर बाइबल मुकद्दस की हम स्टडी करें तो नए अहदनामा में 18 बार इसका जिक्र मिलता है और पुराने अहदनामा में 32 बार, क्योंकि फजल के दौर में आके रोजों पर इतना जोर नहीं दिया गया। लेकिन जब हम पुराने शरीयत के दौर में जाते हैं तो उस वक्त 12 बार हमें नजर आता है कि कभी कोई रोजा रखता है, कभी कोई रोजा रखता है, कभी किसी मुश्किल के लिए रोजा रखा जाता है और कभी कभी किसी मुश्किल के लिए रोजा रखा जाता है। हाँ, दूसरा तवारीख 6 बाब उसकी 12 आयत को पढ़ दे जल्दी से, बस इसके बाद खत्म करेंगे क्योंकि हवाला जात बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूं यहां पे हम इसको क्लोज करें। दूसरा तवारीख 6 बाब उसकी 12 आयत 469 नंबर पेज है, जल्दी निकाला करें। और सुलेमान ने इस्राएल की सारी जमात के रूबरू खुदावंद के मज़बा के आगे खड़े होकर अपने हाथ फैलाए और दुआ करना शुरू किया। अपने हाथ फैलाए और क्या किया? दुआ की। ये खुदावंद तू रहम कर, क्या आज हम अपने हाथ उठाते हुए, अपने हाथ फैलाते हुए शर्मा नहीं रहे? हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है, हम हाथ उठाते हुए भी शर्माते हैं लोग की कहेंगे। लेकिन इस वक्त हमें हाथ उठाने की जरूरत है। आइए इसका जवाब देख लें कि जैसे उसने हाथ उठाए तो क्या हुआ? दुआ की, जवाब आया। दूसरा तवारीख 7 बाब उसकी पहली है, जल्दी से पढ़ दे बस, इसके बाद खत्म कर। और जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी और सोख्ती कुर्बानियों और जिबियों को भस्म कर दिया। सारी सोख्ती कुर्बानियों को जितने जिबे रखे थे सबको क्या कर दिया? भस्म कर दिया। क्या आज खुदा चेंज हो गया है? खुदा वही खुदा है, वही गैरत रखता है, लेकिन हम लोग चेंज हो गए, हम चेंज हो गए। अगर आज हम उसी तरह का दुआ करना शुरू करें, रोजे रखना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि खुदा कैसे हमारे हालात चेंज कर देता है। खुदा जरूर करेगा। और जब आप दुआ करेंगे, रोजा रखेंगे, तो देखें फिर कैसे ये सारी बहाली आना शुरू हो जाएगी। आए खुदा इस्लाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। मैं चाहता हूं दिनों में क्लैपिंग ना किया करें, ना मेरे आते हुए ना मेरे जाते हुए क्लैपिंग ना किया करें, बड़ा मेहरबानी। आए दुआ करेंगे। दुआ में कोई भाइयों में से रहनुमाई करनी है? कोई भाई? हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। फजील बशीर खुदा का दरद के बाद सुना शांति के सुना दे प्यारे यीशु जी, हम दिल और दिल की गहराई से